Hey everyone, this is me Sumija and you are watching While Learning School, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का सेक्शन नंबर 3 नाइट वॉइसेस। ये एक पोएम है और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स आज डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट नंबर 5 का सेक्शन नंबर 3 है क्लास 7 का। अगर हम क्वेश्चन आंसर्स पे चले तो हमारे पास इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं और उसके बाद ग्रामर पोर्शन जो होगा वो अगले वीडियो में आएगा। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड्स that the speaker uses to describe the sound at night. So यहाँ पे आपके पास आंसर लिखा हुआ है, the speaker describe the sounds as whispering, murmuring, laughing and chuckling. Now question number 2 जो है वो match the following है। उसमें आपको बोला गया the sound come from the woods, the seashore, the glen. So उसको हमको मैचअप करना है। So whisper को हम wood के साथ मिलाएंगे, murmur को हम seashore के साथ मिलाएंगे and laugh को हम chuckle glen के साथ मिलाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने गिवन है, इसका आंसर मैं पढ़ देती हूँ। नो द स्पीकर इज़ नॉट टोटली कन्विंस्ड बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिज फादर। वी नो दिस बिकॉज आफ्टर एवरी एक्सप्लेनेशन द स्पीकर सेज बट दे आर समवन हु विस्पर्स इन द वुड, बट दे आर समवन हु मर्मर्स इन द नाइट एंड दे आर समवन लाफिंग इन द ग्लेन। Now question number 4, where are the speaker and his father? How can you tell? ठीक है, तो यहाँ पे है कि the speaker and his father are outdoors somewhere, probably living in a forest. We can say this as the speaker keeps hearing all these sounds, night voices, which his father dismisses as those coming from nature and open स्पेसिस। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि जो स्पीकर है और उसके फादर है वो कहाँ हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो वहाँ है, मतलब जहाँ भी आप आंसर दे रहे हैं वो वहाँ कैसे हैं, आपको क्यों लगता है? क्योंकि जो स्पीकर है और जो फादर है वो अकॉर्डिंग टू हमारे कि आउटडोर में है, यानी कहीं बाहर है, क्योंकि उनको जो आवाज़ें आ रही हैं वो फॉरेस्ट की आवाज़ें हैं, वो जंगल की आवाज़ें हैं। ऐसा हमको इसलिए लगता है क्योंकि नाइट वॉइसेस हैं और उसके फादर जो एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं वो नेचर का दे रहे हैं कि वो हवा का आवाज़ है, यानी कि वो जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो नेचर से जुड़ा हुआ लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो आउटडोर में है, यानी कि बाहर है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देयर इज़ अ सेंस ऑफ urgency in stanza number 3. What makes the speaker even more scared? Now answer is, we can sense the urgency in stanza 3 as the speaker even pleads with this father that they should leave this spot and go away. The speaker gets more scared as the lights are dimming and all he can hear is the laughing, chuckling sounds. Now question number 6. How old do you think the speaker is? How can you tell? So answer is, the speaker seems to be a small boy. We can say this as he seems to be unfamiliar with all the night sound that one can hear in the woods and other natural spaces. Now question number 7. Why do you think the poem is called Night Voices? So answer is, the poem is called Night Voices as it talk about all the sounds the narrator hears at night. Now question number 8 आपके सामने गिवन है, आंसर पे चलेंगे। The poem becomes really eerie in stanza number 4 because of the way in which the speaker describes his father sitting still and staring at the door with a fixed smile. Now question number 9. The poet uses repetition in the poem. Are the words or phrases used for effect or the emphasis give reason? The poet uses repetition for effect. It highlights the stark situation in which the speaker finds himself. The sounds can be repeatedly heard and there is no convincing explanation for what is happening. Now question number 10. There is a rhyme scheme in the poem. For example, breeze, tree in the first stanza, find the rest. So यहाँ पे हमको कुछ राइमिंग वर्ड्स बताने जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं। सो राइमिंग वर्ड्स आर रोर, शोर, गो, लो, फोर, डोर, लेट एंड स्ट्रेट।
सो इसी के साथ हमारा ये जो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट होते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करना है, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। और इस सभी टॉपिक्स का जब हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे मैंने करवा दिया है, जब क्वेश्चन आंसर्स हमारे बुक्स के कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर डेट मैं हर एक चैप्टर का जो है वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करके डालूंगी। सो इसके लिए आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।